Hmm. We were discussing how All India Muslim League had said that bringing the UCC will violate the principle of the Article 25 of Indian Constitution, and it is interfering to the freedom of religion given guaranteed by the article. लेकिन over the years, Congress member or even B.R. Ambedkar supported that uniform civil code should be applied because there is a disparity in the condition of women or inheritance law, even regarding to the marriages institution in different communities. For the for overall improvement and empowerment of the society or integrating the society as a whole, UCC is important. There is no reason why there should not be civil code throughout the country. It is to achieve unity and amity, मतलब this parity by removing factors that contribute differences between the community. तो उसके बाद लेकिन कांग्रेस मेंबर थे वो बोले कि एक तो यूसीसी आप ला सकते हैं एंड स्टार्टिंग में इट शुड बी वॉलेंट्री और एक टाइम पीरियड देना चाहिए कि हो सकता है 10 साल में आप पूरे अप्लाई होंगे, आप तब तक अपने हिसाब से आप मॉडर्नाइज कर लीजिए। एक उसका तरीका होता है, एक और एक तरीका होता है कि टॉप डाउन मैकेनिज्म, यूज ऑफ डेटरेंट, यूज ऑफ क्रिमिनल पेनल्टी, यूज ऑफ क्रिमिनल लॉज फॉर ब्रिंगिंग यूसीसी। तो वैसा हो नहीं पाया। तो राइट फ्रॉम 1950s ऑनवर्ड देयर वाज टॉक ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ द ईच पर्सनल लॉ। तो पहले हिंदू कोड बिल है, उसमें मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ। उसके अंदर में जो डिफरेंसेस, डिवोर्स डाउरी एक्ट, डिवोर्स से रिलेटेड सब आया। उसके बाद फिर मुस्लिम में देयर वाज लेस फोकस ऑन मॉडर्नाइजेशन। तो 1988 में शाहबानो जजमेंट आया। उसके बाद फिर ओवरटर्निंग हुआ बाय द पार्लियामेंट रिगार्डिंग द ट्रिपल तलाक केस। लेकिन 2017 में वापस से सुप्रीम कोर्ट हैड डिसाइडेड दैट इट इज वॉलेटिव ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और वॉलेटिव टू द फीचर ऑफ द आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और 21। तो उसके बाद से वापस से एक यूसीसी का डिमांड बढ़ा। मासी कुछ ऐड करना? नहीं, आशिक मूव फॉरवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रिगार्डिंग द सब कोटा, सब कास्ट इन द कोटा लिस्ट। देखा जाता है कि इन सेवरल quotas from like OBC, SC, ST, only few communities are getting most benefit out of the quota। नाम पता है? तो इन जनरल तो उसमें क्या करना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट हैव सेड द सब कास्ट which have done better should compete with the gender category, says Justice Nath. Constitution bench examining question of whether the state can identify and sub-classify groups within the scheduled caste who deserve greater reservation. Affluent subcaste from the backward classes should not be excluded from the reservation and made to compete on the question. Hmm. Here, the seven judge bench have questioned why the affluent subcaste among the backward classes should not be excluded. मतलब they are questioning that. Some of these subcastes have done better and gone forward. They should come out of reservation, compete in general category. तो यहाँ हम बोल Once सकते a हैं सब person gets into कास्ट में IS, IPS, his children do not suffer from the disadvantage of others. Yet his family will get benefits of reservation. ये बोला। सब कास्ट में चंद्रचूड़ जी क्रीमी बोले लेयर बात हो रही है। क्या हुआ? मैं कह रही हूँ सब कास्ट में ही क्रीमी लेयर क्रिएट करने की बात हो रही क्योंकि ओबीसी में क्रीमी लेयर है और इसमें जनरल तो उसमें भी है। एक तरह से जनरल में भी वो क्रीमी लेयर है। कैसे? है। हाँ। ईडब्ल्यूएस है तो बिलो क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के ऊपर क्रीमी लेयर जनरल कास्ट हो गए। यस। और ओबीसी वैसे ही है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। लेकिन एससी एसटी में नहीं। तो फॉरवर्ड क्लासेस वेयर नेसेसरी एक्सक्लूडेड while reserving seat for the backward classes, but this was approved by the constitution as the nation believed in substantive equality। ये word, this is important। चीफ जस्टिस ऑब्जर्व ओरली। तो 7 जज बेंच वेरी इंपॉर्टेंट। पंजाब लॉ, the state have argued that if sub classification was permitted within the socially educationally, तो कभी भी इकोनॉमिकली नहीं रहता, इकोनॉमिक बाद में ऐड किया गया। सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड कैटेगरीज the same could be permitted for the scheduled caste and scheduled tribe।
ने लिखा जाता है फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कोटास टू द वाल्मीकि एंड मजहबी सिख। तो पहले ही हुआ है, लेकिन वही बात है कि प्रेसिडेंट वॉज empowered टू कट रहे सब ग्रुप SC अंडर द कॉटन कॉन्स्टिट्यूशन 341। लेकिन सब क्लासिफिकेशन का बात हुआ था, लेकिन उन्होंने मिस्टर सिंह जो हाई कोर्ट के उस समय थे, तो वो बोले कि 2006 एक्ट वाज नॉट अ ब्रीच ऑफ इक्वालिटी बट अ एड टू इक्वालिटी। He said that by giving preference to the most backward among the backward or the weakest among the weak, you are not excluding the others। तो अभी ओरल जजमेंट है, तो इसमें ये देखो यहाँ पर है ओरली, जस्टिस ओरली, ऑब्जर्व्ड ओरली। तो ओवरऑल बोलेंगे ओरली है ये, तो अब जजमेंट जब आएगा तो अपन लोग डिटेल में कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एससी और एसटी के लिए 2004 में एक फैसला आया था कि रिजर्वेशन के लिए क्या किया जाए। उसके अलावा जो रिजर्वेशन करते हैं ना, राज्य सरकार के पास इस चीज का अधिकार नहीं है कि वो जो सब क्लासिफिकेशन है जो रिजर्वेशन का और कैटेगरीज का उनको करे। तो ये देख सकते हैं कि ये जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास नहीं, सेंटर या पार्लियामेंट के पास ठीक है, सेंटर पार्लियामेंट, हाँ ऑब्वियसली। सीवियर इरोजन ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म, तो ऊपर आर्टिकल ने पढ़े कि रिगार्डिंग कि सेंटर हैव सेड दैट केरला केरला इज द मोस्ट फिजिकली अनस्टेबल स्टेट, मोस्ट नहीं वन ऑफ द मोस्ट फिजिकली अनस्टेबल स्टेट। तो केरला हैज moved the supreme court contending the center imposition of net borrowing ceiling on the state, limits the borrowing from all the sources, violates the article 293 of Indian constitution। 293 है क्या? है। 219 Indian एग्जैक्टली। constitution, state has obtained the consent of the center to raise any loan। हाँ ये वाला पार्ट है। If there is already a borrowing from the center, then it has to take the consent of the center to take any other loan। अगर प्रीवियस लोन चुकाने के है तो। द इम्पोजिशन ऑफ NBC, नेट बोरोइंग सीलिंग, सीलिंग मतलब इतनी सारा लोन नहीं ले सकते, इज डन बाय इन्वोकिंग द पावर ऑफ द सेंटर अंडर 293, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो इसको एग्जाम्पल लिख सकते हैं एज एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की सीलिंग लिमिट भी सेंटर ही डिसाइड करेगा। तो स्टेट की कहीं ना कहीं फेडरल जो पावर्स है वो थोड़ी बहुत बोल सकते हैं कि इट इज इम्पैक्टेड दैट ऑल्सो। यस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल फेडरलिज्म, तो ये एग्जांपल है फिजिकल फेडरलिज्म। ग्रांट्स तो होती है सेंट्रल ग्रांट्स, ये भी एग्जांपल, नेट बोरोइंग सीलिंग, दिस कीवर्ड कैन बी हाँ, अभी हाईलाइटेड। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स की बात करी, हम्म केरल को सबसे ज्यादा दी गई। हम्म। फिर दिया पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू लेजिस्लेट अमॉन्ग द पब्लिक डेट ऑफ द स्टेट, लेकिन इट हैज द पावर टू मेक द इन्वोक द NBC, नेट बोरोइंग सीलिंग। कि व्हाट इज नेट बोरिंग सील, अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ले, इसी में से इन्वोक किया जाता है फ्रॉम द आर्टिकल 293। नेट बोरिंग सील लिमिट्स द बोरिंग ऑफ द स्टेट फ्रॉम ओपन ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग ओपन मार्केट बोरिंग। इट कैन बी फ्रॉम स्टेट ओन enterprises, out of budget, tax assignment, any other state revenue। Major infrastructure project initiated by the state government are funded by the government statutory body, Kerala Infrastructure Investment Fund Board, KIIFB, थ्रू एक्स्ट्रा बजटरी फॉर्मूला। अब है कि डेट जो KIIFB इसको इंक्लूड किया गया है नेट बोरिंग में, तो उनका जो डेट है वो सीलिंग से ऊपर चल जा रहा है। दैट इज वाई सेंटर इज नॉट गिविंग एनी एक्स्ट्रा फंड। A state government claims that it is not able to fund pension and meet the expenses of the welfare scheme। तो एक अब तरीके से तो स्टेट, ब्लॉकेज है। जो हमने सॉल्यूशंस की भी बात करी, अगर ये डेट सीलिंग हर चीज पे बोरोइंग लिमिट के ऊपर लगा दी जाएगी तो स्टेट्स के पास तो फिर अल्टीमेटली कुछ बचेगा नहीं एज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन ऑल्सो। तो सोल्यूशन में भी अगर उनको बोल रहे जीएसटी कॉम्पनसेशन में भी कि आप पैसा बोरो कर लो मार्केट से, तो सीलिंग लगा दी तो वो बोरो भी नहीं कर पाएंगे। मैं बता, ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू पब्लिक ऑर्डर फॉल विद इन डोमेन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर।
सेंटर हैज नो पावर टू इंक्लूड द विड्रॉल फ्रॉम पब्लिक अकाउंट एनबीसी। लेकिन स्टेट टेरिटरीज की बात कर रहे हैं, केरला फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, जैसे इंडिया में फिस्कल एक्ट एफआरबीएम, वैसे केरला का अपना भी है। इट सेज दैट केरला शुड रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट 3%। It calls for the management and fiscal discipline. Article 202, state government, it is tasked to determine revenue or receipt corresponding expenditure should be presented before the budget. The management of the state is discretion of the state government. True. लेकिन ओवरऑल देखा गया कि केरला फिस्कल deficit is reported to have a significant reduced to 2.4% and revenue deficit to 8.0.88%, और सेंटर केस में 5.8 है। हम्म तो ओवरऑल कमी है, तब भी इस पर इन पर लगा है, बोरिंग लिमिट लगा है, बोरिंग लिमिटेशन लगा है। तो ठीक है। यहाँ एंड में ये बोल रहे हैं कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, दिख ये रहा है कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्टिव एंड एनिहिलेटिव कोऑपरेशन एंड फेडरलिज्म, मतलब कोऑपरेशन ये नहीं। लिखा, हाँ, एनालिटिव फेडरलिज्म एग्जाम्पल, या फिर ठीक। मालदीव एस्टेट प्लान टू reduce लोअर डिपेंडेंस ऑन इंडिया। इंडिया पर 21,640, 16,000 नंबर ऑफ टूरिस्ट टू अराइव, देयर हैव डिक्रीज, टूरिस्ट हैव डिक्रीज। पहले 6,000 थे, चाइना के अब बढ़ गए। चाइना हैव रिप्लेस मालदीव्स इन टूरिज्म सेक्टर। Maldives imports 95% of its granite, 40% of its steel bar, 30% of its tube from India. So India exports 70% of its cabbage, cauliflower, 20% of its egg, 70% of its cabbage, cauliflower मालदीव्स को देते हैं। तो उससे क्या होगा कि when when India will get replaced, तो दो घाटा होगा दोनों के लिए। फर्स्ट, द एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया, फॉर एग्जाम्पल कैबेज, melons, it will impact the agriculture sector। और ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि मालदीव छोटे कंट्री। लेकिन दूसरा जो बात कर सकते हैं कि हाँ, मालदीव्स के लिए कि मालदीव विल इंपोर्ट ऑल दीज इक्विपमेंट, ऑल दीज प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना। और जो इंपोर्ट हो सकता है वो हो सकता है ज्यादा हो, ज्यादा कॉस्टलियर हो, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट हैव टू टेक अ लॉन्गर रूट टू रीच मालदीव्स rather देन इंडिया। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक दिक्कत हो सकता है। तो इंडिया का जो पॉलिसीज रहा है अभी, वेट एंड वॉच ही रहा है, तो भी देखते। This is a very important article. Understanding a delimitation exercise. Delimitation exercise is to be done for the all Lok Sabha and state legislative on the basis of first census after 2026. अभी सेंसस नहीं हुआ, इट इज डिलेड by 2 to 3 years. Delimitation होता है, इट प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग नंबर ऑफ सीट एंड बाउंड्रीज ऑफ ईच स्टेट फॉर लोक सभा लेजिस्लेटिव असेंबली। It includes determining of the seat reserved for the SC, ST in the houses. Article 82 and 170 of the Indian Constitution provide for the number of seat for the Lok Sabha and state legislative as well as division of the territory existed after each census. लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। अभी जो सेंसस होता है 1971 के सेंसस पर डिलिमिटेशन किया गया था। तो डिलिमिटेशन कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी, बट इट हैज अ ओवरआर्किंग पावर। The acts of the Delimitation Commission cannot be questioned in the Supreme Court. इनका फाइनल होता है। और Delimitation Commission was established by the Parliament after 1951, 61, 71। और अभी जो करंट अभी डिलिमिटेशन है फ्रीज किया गया, हाँ, 1971 के 1971 से सेंसस, ऊपर में किया। तो हम्म, वो भी फ्रोजन है टिल 2026। तो उसके हाँ बाद जो सेंसस होगा उसके बेसिस पे फिर डिलिमिटेशन फिर से होगा। हाँ, number will be readjusted after first census after 2026, दिस वाज डन अंडर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 में। 84। हम्म
2000 में। The boundary of territorial constituency were readjusted. Seat for the SC/ST were determined as per the 2001 census. Will again be carried out after 2026. क्यों किया गया था? क्योंकि in some state there was a population explosion, whereas other states were managing population well. तो उनको इंसेंटिव देने के लिए कि आप पॉपुलेशन पर कंट्रोल करें, तभी 1971 के हिसाब से किया गया कि अगर पॉपुलेशन बढ़ भी रहा है तभी आपका सीट उतना ही रहेगा। लेकिन जो एक क्वेश्चन उठता है, जितनी आबादी उतना हक रिजर्वेशन में, तो इसमें वैसे ये उठता है कि जितनी आबादी उतना सीट उतना हक। तो एक तरह से सम स्टेट्स आर डिमांडिंग दैट वी हैव मोर पॉपुलेशन, वी हैव मोर पर्सन टू फीड, वी शुड गेट मोर ग्रांट्स एंड सब्सिडीज फ्रॉम द सेंटर। साउथ के स्टेट बोलते हैं कि while we are doing much for the population control, we are being we are being punished by the center because we are getting less from the tax revenue। and even जैसे केरला का एग्जांपल हो गया स्टार्टिंग में, नेट बोर्डिंग सीलिंग आप ले नहीं सकते हो एक्स्ट्रा। तो एक ये इशू इंटरनेशनल प्रैक्टिस में क्या होता है, नंबर ऑफ सीट्स एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैज बीन कैप्ड 1913 से। पॉपुलेशन 9.4 करोड़ था, अभी 33 करोड़ हो गए यूएस के। सीट्स ऑफ द स्टेट आर रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन जो हाउस के हैं उनके कैप हो चुके हैं। लोकसभा राज्यसभा, वहां के भी लोकसभा, लोकसभा हो गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और राज्यसभा हो गया हाउस ऑफ सेनेट। सेनेट में हर स्टेट 50 स्टेट 2 जन को भेजते हैं 100, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 435। इलेक्शन हर 4 साल में होता है फॉर द प्रेसिडेंट, हर 2 साल में होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड हाउस ऑफ सेनेट के लिए, हर दो, हाँ 2 साल में। State after the seat among the states are redistributed after every census, method of equal proportion। लेकिन सेनेट का नहीं किया जाता, सेनेट का इक्वलेंट है 2 का 2। अगर वो स्टेट में सिर्फ 2 लाख पॉपुलेशन है तब भी 2 सीट होगा, अगर वो स्टेट में अगर 5 करोड़ पॉपुलेशन तब भी 2 ही सीट रहने वाला है। तो हर एक स्टेट के लिए इक्वलिटी है। इंडिया में ऐसा नहीं है, राज्यसभा में हर एक स्टेट है, उनका अपना परसेंटेज है, इतने लोग भेजते हैं राज्यसभा में, हर एक स्टेट पॉपुलेशन के हिसाब से उनका डिवाइड किया जाता है। यूरोपियन यूनियन में डिफरेंट है, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टू द नंबर ऑफ सीट्स आर इंक्रीज एज पर द पॉपुलेशन इंक्रीजेस। वहां पर आइडियल सोल्यूशन क्या है, तो इसमें बोला जाता है कि हाउस ऑफ एमपी शुड बी कैप्ड, नो डिस्ट्रप्शन होगा स्टेट रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, इट विल अपहोल्ड द फेडरल प्रिंसिपल। लेकिन एमएलए को आप इंक्रीज कर सकते हो विद लाइन ऑफ द करेंट पॉपुलेशन टू एड्रेस द डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट। अब म्यूनिसिपैलिटी का पंचायत को भी आप एक तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हो इसमें, ताकि डे टू डे बिजनेस विल बी मोर स्ट्रेंथन। तो एक ये भी आइडियल सोल्यूशन है मानसी। हाँ, वी आर तो यहाँ पे टेकिंग कैन अप। वी से कि जो डीलिमिटेशन कमीशन है उनके डिसीजंस तो बाइंडिंग और फाइनल होते हैं, बट आर दे ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू? नो, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू। हाँ मतलब यही चीज मुझे भी लगा था कि ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू तब हो सकता है जब हो सकता है जुडिशियल, लेकिन उनके वर्किंग पर नहीं होगा। जैसे वो बता दिए कि हाँ बाउंड्री इसको इस तरफ करना है उस तरफ करना है, तो एग्जैक्ट बोल दिए। हो सकता है करप्शन जो होगा डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर में, तो जुडिशियल उस पर हो सकता है, लेकिन उनका ठीक है। डिसीजन जो है ना ऑन द ग्राउंड एक बार, तो वो नहीं हो सकता। हाँ, एक बार देख डिसीजन पे सर्च नहीं कर होता। लेना। तो उनकी मैंने भी सर्च किया था लेकिन यही आया था, इसलिए ऐसा ओके। लगता है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, हो भी सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से डिराइव किया हुआ है, फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। लेकिन ये कंफ्यूजन है ओवर, क्योंकि ऐसे ही बोला जाता है कि वंस दे हैव टेकन डिसीजन इट कैन नॉट बी अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपील नहीं कर सकते। तो एक बार सर्च कर लेना मर्जी। ठीक है।
वी कैन नॉट टेक अप इकोनॉमिक्स में, यहाँ से ना। नहीं ये तो, हाँ हाँ ऊपर ही है, यस। इवन दिस यू हैव टेकन हाँ ये मैमर साइंस मॉडल। हो चुके हैं, हाँ। ये यूकेएफटी, इंडिया सेट्स इट्स स्लाइड साइट्स ऑन मोबिलिटी टू स्कॉच इनपुट। तो 14th राउंड, हर बार नेगोशिएशन होता है बिटवीन यूके एंड इंडिया ऑन स्पेसिफिक लिस्ट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर स्कॉच विक्सी स्कॉटलैंड से आते हैं, हर एक के लिए बात हो रहा है। ये ऑफिंग होता है एफटीए टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ये भी पूछा है पीटीक्यू में। स्पेसिफिक एरियाज जिसमें आपको साइन करना है एफटीए। ये ले चुके हैं ये भी। सरफेस टेंशन है बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट फिनोमेना। डिटर्जेंट की वजह सरफेस से टेंशन के बहुत कारण ही कैपिलरी रिएक्शन होता है। कैपिलरी रिएक्शन कारण ही जाइलम और फ्लोएम काम करते हैं, हाँ। पर्टिकुलरली जाइलम। फ्लोएम में तो ग्रेविटी भी एक्ट करते हैं, क्योंकि आपको लीव से पहुंचाना है बाकी सब बॉडी पार्ट्स में। लेकिन सरफेस टेंशन हर जगह काम होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, सरफेस टेंशन। चाहे वो ब्लड का वर्क हो बॉडी के अंदर में, सरफेस टेंशन, प्रेशर एंड सरफेस टेंशन, दो चीज, और जाइलम इसी में काम करते हैं, क्योंकि इट हैज टू पंप वाटर फ्रॉम डाउन टू अप। वी हैव टेकन जेनेटिव फॉर दिस डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एंड डाइवेस्टमेंट आई थिंक ऑपोजिट्स होते हैं। हम्म। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है फिर? डिसइन्वेस्टमेंट तो जो गवर्नमेंट का शेयर है वो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है, प्राइवेट सेक्टर का कभी डिसइन्वेस्टमेंट नहीं सुना है। एक डाइवेस्टमेंट है। 50,000 करोड़। फॉरेक्स रिजर्व बफर, हाउ मच इज इनफ? पॉपुलिस्ट एंड एक्सट्रीम पॉलिसीज, पॉपुलिस्ट एंड एक्सट्रीम पॉलिसीज क्या हो सकता है? हेवी सब्सिडीज, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, फर्टिलाइजर, फ्यूल, फूड, पीडीएस एक्सेट्रा, पॉपुलिस्ट पॉलिसीज है। एज ऑफ नाउ 616 बिलियन एज अ रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व। Import covers the ratio of reserves to monthly import. Germany imported twice as much as India. तो ओवरऑल रिजर्व में हाईएस्ट चाइना के पास है 3238। रिजर्व का बढ़ता है तो एक्स नेट एक्सपोर्ट, मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट यस होगा। हाँ। रिजर्व 623। एफडीआई भी इंक्लूड होता है इसमें, तभी होता है। जापान 1160। लार्ज इमर्जिंग इकोनॉमी, मोस्ट ऑफ इम्पोर्ट कवर वेल अबव 3 मंथ, 3 मंथ से ज्यादा। इंडिया 7 मंथ। टॉप 5 में देखे तो एशियन इकोनॉमीज ही हैं, एक बस स्विट्जरलैंड यूरोप हो गया। हम्म। टॉप 5 तो एशियन इकोनॉमीज है हाईएस्ट में। हम्म। अब बता मानसी, एक क्वेश्चन बता मैं सर, कि यूएस के पास क्यों नहीं होता है हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व? क्योंकि उसके पास यूएस डॉलर तो है ही 200 का। ऑलरेडी वन ऑफ द हाँ, डॉलर ग्लोबल है। करेंसी। सिंपल क्वेश्चन था। इसीलिए हाँ डी आया। डॉलराइजेशन की बात कर रहे हम्म। हैं, हम्म। इंटरनेशनलाइजेशन की बात कर हम्म। रहे हैं। हम्म। IRCTC launches a Ramayana circuit. All these are circuit as part of the Prasad scheme. Buddhist circuit, Ramayana circuit, फिर B.R. Ambedkar circuit and his life, circuit, Gandhian circuit. तो रामायण सर्किट इज बीन लॉन्च टूरिस्ट ट्रेन सर्विसेज, राम जन्मभूमि टेम्पल अयोध्या, भारत हनुमान टेम्पल नंदीग्राम, जानकी मंदिर। तो इट विल इंक्रीज द रिलीजियस टूरिज्म। टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज ऑल, हिट ऑल टाइम हाई ऑफ 11.7% ऑफ जीडीपी। 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 11.7% ऑ
So this reflects improvement in tax efficiency also, tax collection efficiency. Hmm. Hmm. Formalization of economy, tax collection, etc. Nominal tax growth is expected to rise 10.5%. और यहाँ पे ये भी है, क्वालिटेटिवली भी इम्प्रूव हो सकता है, क्वालिटेटिवली इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस अगर इम्प्रूव हो रही है, जैसे हम फेसलेस टैक्स सिस्टम की बात करते हैं, तो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जा रहे हैं, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर टैक्स बेस ही वाइडन होगा तभी टैक्स टू जीडीपी रेशियो इम्प्रूव होगा। तो अभी इंडिया के केस में सपोज वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, तो इट इज मोर बिकॉज ऑफ क्वालिटेटिव रीजंस। Hmm. Yes. India to see $67 billion in energy investment in next 5 to 6 years. Energy, Indian energy week, $67 billion investment. So Global Biofuel Alliance, it was launched in G20. वैसे ही ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जियोथर्मल, नेपाल के साथ बात होता है, हाइड्रो एनर्जी, सोलर, इट विल नीड। फिर अगर बोला जाता है तो 500 गीगावाट टारगेट बाय 2030 और पंच अमृत मिशन। हाँ, 500 गीगावाट फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स। यस। यू हैव टेकन दिस। Rajya Sabha passes bill to add PBTG of Odisha, Andhra Pradesh to ST list. So inclusion of the SC ST into the list, it is done by the parliament, जैसे दिव्या ने कहा इसमें। और नए जो ऐड होते हैं, इट इज रिकमेंडेड बाय द स्टेट एंड इट इज डन बाय द पार्लियामेंट। पीबीटीजी के हिसाब से देखा जाए तो इनको इंक्लूड किया गया। पौरी भुइयां, पौड़ी भुइयां, सिनोनिम ऑफ भुइयां टाइप। चुकतिया, भुंजिया। हो गया ये वाला प्रेरणा ने कवर कर लिया था। ऊपर कोट है, आप वो देख सकते हो। ऊपर हाँ, एक और पोर्शन रहता है, पेज नंबर 20 से भी ले सकते हैं, वो भी कवर्ड नहीं है। पेज नंबर 20, 22 कुछ एरियाज रहते हैं, 2 आर्टिकल्स। This we have seen हो गया। covered. We have covered this one. हाँ, ये कवर्ड है। 23 देखो, हाँ एक तो ये रहता है, 20 वाला जो भी आपने दिखाया था। New Science Research Board ANRF comes into effect. Anusadhan National Research Foundation. It will have a corporate 50,000 crore with net 36,000 crore projected to be come from private sector. It will subsume the existing board SCRB. बहुत important SCRB, Science and Engineering Research Board. It will subsume. इसको रिमूव करें। अनुसाधन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF। इसी अनुसंधान। से बात की थी ना कि नेशनल साइंस फाउंडेशन जो यूएस के उनके हिसाब से बनाया जाए, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन। इट इज प्राइमरी प्रीमियर बॉडी फॉर द साइंटिफिक रिसर्च, ग्रांट देते हैं एंड फॉर टारगेटिंग ऑफ द न्यू रिसर्च, तो सर्व करते हैं। तो अभी तो इट विल सब्स्यूम 50,000 करोड़ कॉर्पस दिया जाएगा फंडिंग के लिए, रिसर्च फंडिंग के लिए। हाँ, ये बोलो। याद रख सकते हैं कि दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों फंड करेंगे। फंड करेंगे। रिसर्च को ही हिंदी में अनुसंधान बोलते हैं और वो ही नाम रखा गया। हम्म। ये वाला रहता है। Debt plus import rule. Asian financial crisis 1990s shows the import cover is not sufficient. True. Import cover of Thailand, Indonesia was अब 3 month threshold, लेकिन तब भी उनका प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन क्यों हुआ था? क्योंकि वो डिफरेंट था 1990s का इशू। इट वाज बिकॉज द ऑल दीज कंट्री वेर allowing full capital convertibility.
1997 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, इंडिया का ऐसा नहीं है, तो इंडिया इज वेल सूटेड। मानसी। हाँ, ये बोल सकते हैं हम। तो ठीक है, अब इसलिए जरूरत टाइम है जो के कि लेट चैलेंजेस भी। लार्ज कैपिटल आउटफ्लो, इंडिया में कैपिटल कंटिन्यूटी पूरा नहीं है, तो इसलिए नहीं कर सकते। एक ही रूल है यहाँ पे, ग्रीन स्पैन ग्यूडोटी रूल recommends that nation's reserve should be at least equal its short term external debt। बस याद रखना इम्पोर्टेंट है। हम्म Cover all BOP drains. IMF goes a step ahead and adds two more indicators that impacts balance of payment. Non-debt external liability and broad money. How much reserve our economy needs to protect itself. Fragile 5, country exceed this range. मतलब सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना आपके पास रिजर्व है, आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि डिपॉजिट बेस कितना है। मोर ब्रॉड डिपॉजिट मनी बेस और आप, हाँ, एक्सटर्नल मेक्स मोर फैक्टर्स सेंस। की तरह आपकी इकोनॉमी पे इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे हम इकोनॉमिक रेजिलियंस की बात करते हैं, तो खाली वो ये कि फॉरेक्स रिजर्व्स ही एज अ सेफ्टी मेजर या रेजिलिएंट मेजर्स काम नहीं करते हैं। ठीक है, क्या कंप्लीट। 6 पेज नंबर पे मूव करना। हो गया ये? हाँ। Sunil targets Asian qualifying event. Greco-Roman wrestler सुनील कुमार, एशियन। ठीक है। सिया गोदिका has won fourth on 400K breakthrough prize foundation. This one, मानसी। नहीं, ये कवर करना है। करना है। हम्म। हम्म Performs transparent transplant first, charge patient later, panel tells hospital. Hmm. Patient waiting for the organ transplantation have filing when a donor finally becomes available, तो इनसफिशिएंट फंड हो सकता है क्योंकि आप वेटिंग लिस्ट में हैं, तो 1 साल 2 साल गुजर गया, आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मिला नहीं, लेकिन बाद में जब मिलता है तो हो सकता है पैसा नहीं, उसके लिए आप ट्रांसप्लांट पहले करिए, फिर फंड्स आप इकट्ठा ले सकते हैं। तो फंड कैन बी एलोकेटेड बाय इंश्योरेंस ऑल्सो, और ईएमआई स्कीम भी कर सकते हो उसमें, धीरे धीरे आप चुकाते रहना। सन ऑफ अ मैकेनिक हु वाज नॉट एबल टू प्रिपेयर द रिक्वायर्ड फंड, वेटिंग लिस्ट में आप अलग लोग। ट्रांसप्लांटेशन कॉस्ट 7 लाख से 30 लाख हो सकता है। सीएम रिलीफ फंड ऑल्सो सपोर्ट्स ट्रांसप्लांट पेशेंट। यहाँ पे ज्योतिबा फूले जन आरोग्य हम्म योजना, किडनी ट्रांसप्लांट के ठीक। लिए। A secular state goes neither by the script nor by custom. It must work on sociological and political ground. True. Secular state should also focus on the just society, accommodation, and it should impart the constitutional principle so that the every section of society get due justice and due representation in the system of government. It should not run by the script or custom, because scripture and custom is generally uh, communitarian बोथ आर basis। रिजिड, बोथ आर हाँ रिजिड। रिजिड होता है, हाँ रिजिड हो सकता है, कम्युनिटेरियन हर एक कम्युनिटी का अलग होता है। तो सेकुलर स्टेट को सोशोलॉजिकल, सोशल मतलब डेटा ड्रिवन, सोसाइटी में डेटा इस कलेक्शन, डेटा ड्रिवन, ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड, पॉलिटिकल मतलब अकोमोडेशन, नेगोशिएशन,
उस पर फोकस करना चाहिए। तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन है एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक बुक इंडिया में, दैट हैज टू बी फॉलोड। तो अगर स्क्रिप्चर चलेगा, एग्जाम्पल ईरान, तब दिक्कत हो, सेकुलर नहीं है। कस्टम में चलेगा, एग्जाम्पल अफगानिस्तान, हर के लिए अलग ट्राइबल कस्टम है, दिक्कत होगा। तो सेकुलर स्टेट जस्ट लाइक इंडिया सोशोलॉजिकल और पॉलिटिकल ग्राउंड के हिसाब से चलते हैं। मानसी, हाँ राइट, ठीक है। वरी इज द इंटरेस्ट पेड बाय दोज हु बोरो ट्रबल। यहाँ पे आज जो हमने एग्जांपल बात करी फिजिकल फेडरलिज्म की, मतलब अगर ट्रबल बोरो किया, अगर आपने फाइनेंशियली मिसमैनेजमेंट करी चीजें और नॉट बीन सक्सेसफुल इन हम्म, मैनेजिंग द फाइनेंसेस, तो वरी है कि आपका फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, हाउ यू विल बी मीटिंग द फ्यूचर फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स। ठीक। क्लाइमेट चेंज की बात कर सकते हैं, हु बोरो ट्रबल, वरी इज द इंटरेस्ट पेड बाय, सक्सेसिव जनरेशन इंटरेस्ट पेड करेंगे। हम्म। We have discussed this one. Live-in relationship must register with the government. Child have a, from the living relationship have legal rights. इसकी एज 21 रखी गई है, मैरिज के लिए 18 और 21। हम्म। नहीं कहेंगे तो 3 मंथ जेल एंड 10,000 रुपीज फाइन। तो ये थोड़ा ज्यादा डेटरेंट किया जा हाँ, रहा है। मतलब लिव इन रिलेशनशिप ही अगर मतलब रजिस्टर करनी लिविंग पड़ेगी रिलेशनशिप तो इट इज भी नॉट किसी। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, फिर तो शादी हो हाँ। गई, एक तरह से मैरिज हो गया। हम्म। तब तो फिर लिविंग मतलब रिलेशनशिप उसके कॉन्सेप्ट ही पीछे नहीं जो आएगा, खत्म आइडिया हो है वही की बीइंग ट्राइड एंड टेस्टेड, वही फिर नहीं मीटअप हो पा रहा अगर आपको रजिस्टर ही करनी है एंड में। जाएगा। एंटी चीटिंग बिल वी हैव टेकन दिस वन, आई थिंक। हो गया कंप्लीट आई थिंक। Okay, thank you everyone. We will take up next set of important articles tomorrow due to answer.